Good morning, everyone. Thank you for Good morning, joining. sir. Good morning. Good morning, sir. Yeah. Girish, you want to start about this? What did you read about this, Girish? Uh, yes, sir. One minute. Sure, sir. So the mid-scale hotel industry is going through an aggressive expansion right now. So around 38 to 40% of the total hotel inventory in India is the mid-scale sector. Right Hmm. now, the total market size of the Indian hotel industry is around $34 billion. And by 2030, it is expected to be around $50 billion. 40% of that growth will come from the mid-scale sector. So around we can expect around 6.5 to $7 billion worth of value coming out of this sector in the next 5 to 6 years. So these around 65,000 rooms are there in the mid-scale hotel sector, and they're expressing and they're going to expand around 9 to 10% year on year going forward. So companies such as Indian Hotels, Hampton, and Ginger will be expected to increase their foothold in this specific segment. Okay. So why it is increasing? So, a couple of reasons. First is Indian disposable income is increasing. So, a Hmm. lot of people are coming towards the middle class. So, there'll be an upgrade from the economy sector to the economy hotel to the mid-scale sector. And second, inflation rates are falling. So, due to which expected inflation is also falling. Like it has gone from 4% to actual inflation being around 3.2%. And there has been a general rise in international and domestic tourism in India. Yeah. So this on this topic we are talking it from last so many days. That the tourism sector is increasing. Now, yeah, Ratan is right. Na? He's saying that the religious travel is increasing, and majorly the hotels. I think it is around the range of 5,000 per night. So it is not, it is affordable market, and India being an affordable segment, affordable, I will say, affordable segment. India being into mass segment, so this is expected to grow. But on this news, I didn't find anything which was much impactful. Okay, I got them later that okay, there are 65,000 rooms. There were 9,000, it went to 65,000. Then the room rates are 5,000 around mid scale around. So don't you think, Girish, that 40% is only mid segment, the rest 60% is luxury, correct? So even Uh, if this is growing, what is the point? Na? If your 40% portfolio is growing and 60 is not. So for that sense, IHL. Okay. So sir, if it is contributing only 40%, then what is the point of that growing? Got it? sir, isn't the rest like mostly economy sector or is it luxury like No, the so rest? see, mid scale is 40, so obviously then other will be 60, no? Yes, Only two yes. segment, na? Mid and the luxury one, correct? So obviously luxury can be split up. Now Abhishek would like to add something, Abhishek. Ye 65,000 rooms. Hi, sir. I Hmm. So actually, I don't know ये 40% का नंबर कहाँ से मिला बिकॉज इफ यू सी होटल मार्केट का जो हॉवर्ड का रिपोर्ट है ना hmm. सो उसमें मिड स्केल इकोनॉमी इज 27% सप्लाई शेयर ओके Okay. एंड रूम रेवेन्यू में 10% करता है वो एंड हाईएस्ट इज अपर अप अपस्केल अपर मिड बोलते हैं उसको ओके Okay. विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 41% का सप्लाई शेयर है Okay. आई थिंक द न्यूज इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली So I think बट this इस mid, he's talking about mid 5,000, ये जो होगा ना, ये रेंज में मिड की बात किया, क्योंकि नहीं, मिड 2,000 के भी स्केल आते जो हैं। होता है ना, सो बेसिकली आपका मिड स्केल का जो एडीआर होता है हाँ दैट शुड बी समवेयर अराउंड 3500 टू हाँ, 3800. करेक्ट, ओके, हाँ। एंड उसके ऊपर वाले में इट गोज अप टू 8000 8500. वो जो गैप है वो गैप में कोई जनरली योर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज्यादा है, ठीक है. हम्म बट हम्म है, ऐसे नहीं कि नहीं है. तो वो जो रेंज है वो एक ब्रॉड रेंज देते हैं कि 3000 टू 5000, अबाउट से 6000 टू 8000 का जो अपर मिड है उसके ऊपर आपका लग्जरी जाता है.
अभी इसमें एज यू सेड मतलब मेरे को भी इतना कुछ उसमें खास ऐसा इम्पैक्टफुल लगा नहीं इसमें हाँ, न्यूज़, बिकॉज बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि ये न्यूज़ ना अभी बहुत आने लगा है. ओके, सो करेक्ट. इट्स वेरी क्राउडेड स्पेस नाउ. एंड वील हैव टू आल्सो सी कि इसमें ना, इफ यू सी हॉवर्ड का रिपोर्ट आप खोलोगे तो इसमें क्या बोल रहा है, वो क्या बोलता है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी द ऑक्यूपेंसी लेवल. ओके, हम्म. which is around 55%. तो मिड स्केल luxury में भी. upper up is doing 80%. हाँ, तो दैट्स व्हाट. तो हाँ. प्रॉब्लम क्या है ना, your higher ADR वाला is doing the best and your lower ADR वाला is doing the worst. आइडियली उल्टा हम्म. होना चाहिए, लोअर उल्टा होना एडीआर चाहिए. ज्यादा करना चाहिए तो वॉल्यूम में कमाना चाहिए वो. ठीक है. करेक्ट. इट इज बेसिकली वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू Zudio doing lesser sales and somebody like रेमंड. Louis हाँ. Philippe doing the best sales. ठीक है, तो Louis Philippe will obviously grow better than Zudio ना. करेक्ट. तो दैट्स व्हाट आई वो वाज सेंस. कंसर्न. हाँ, कि ये हाँ. 40% है तो मतलब इट शुड बी द अदर वे राउंड ना, अदर वे राउंड. हम्म. मतलब आइडियली हाँ अदर वे राउंड होना चाहिए. एंड हाँ. मेरे को नहीं, मेरे को क्या लगता है कि यू नो मिड स्केल में अभी हो रहा है, बट सी यू शुड आल्सो लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मिड स्केल. अभी फॉर एग्जांपल इफ यू सी मतलब लेमन ट्री का आप देख लो. ठीक है, तो उसने अभी अभी परसों उसने एक नया होटल साइन किया है. ठीक है, हम्म. पाली में. वो तो ठीक है. उसके पहले लास्ट वीक दे साइंड अ होटल इन नवसारी एंड दे सेड दैट ये मुंबई वडोदरा हाईवे पे है वगैरह वगैरह. ठीक हाँ. है. एंड बाकी भी करते हैं, छोटे छोटे ओयो है, ये लोग भी कर रहे हैं. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, मिड स्केल सेगमेंट में द बल्क ऑफ द डेवलपमेंट इज कमिंग बिफोर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग में होगा आपका. ठीक है. तो ये जो जब लैग में होता है ना, इंडिया में जो वी कैन लिंक इट बैक टू द इंफ्रा टारगेट्स. इंडिया इज नॉट एबल टू गेट टू दैट कैपेक्स एंड इंफ्रा टारगेट्स दे हैव बीन सेइंग एटलीस्ट लास्ट एक साल में. तो ये साल भी नहीं होगा वो. ओके. तो वो हिसाब से देखा जाए तो इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव. मतलब इतना कुछ हाँ, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हो जाएगा. ये हो रहा है. एंड करेक्ट. स्पेशली इसमें अगर जो ग्रीन फील्ड कर रहा होगा ना वो तो फंस जाएगा, बिकॉज कैपेक्स ट्रैप में जाएगा एंड देन इंटरेस्ट कॉस्ट माउंट होगा. हाँ. डाउनफील्ड तो फिर भी ठीक है, चलो ले लिया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कुछ कर लिया, ठीक है फिर भी. ओके. सो दैट वे ऑल्सो इट इज पॉजिटिव फॉर मिड स्केल. बट देन दीज रिस्क ऑल्सो एग्जिस्ट कि तुम्हारा कैपेक्स ट्रेंड नहीं पकड़ेगा एंड इंफ्रा स्पेंड नहीं आएगा. देन वो एरियाज में लोकेलिटीज में ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर देन यू आर स्टक. लाइक वैसे लाइक अभी नवी मुंबई ले लो. मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या, न्यूज पे देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ, देयर इज अ लॉट ऑफ करेक्ट. होटल्स आल्सो हाँ. सेट अप देयर. But then the crux is if the airport itself will not be able to generate उतना around उतना हाँ. ये, तो वापस. जेवर एयरपोर्ट ले लो which is not being able to you know जेवर एयरपोर्ट का अभी वापस वो लोग ने बोला कि जुलाई में ही they have been delaying. तो these delays actually don't impact the airline segment, these impact the ancillaries like एंसिलरीज. hotels, करेक्ट. हाँ. real estate and all. तो इंडिया में we should also keep in mind the delays that are there. उस हिसाब से we should also think. तो मेरे को ये न्यूज में एक्चुअली इसलिए मैं बोला नहीं ना सर, मेरे को कुछ इम्पैक्ट लगा ही नहीं हाँ, इसमें. वही मुझे. दैट्स व्हाट आई वाज नेम. वो गिरीश इज ट्रैकिंग. ही इज फ्रॉम IIM कलकत्ता. सो ना, ओके. ही वांटेड टू डू अ रिसर्च ऑन दिस सेक्टर, सो ही वाज नहीं, टॉकिंग सेक्टर अस. इज गुड, सेक्टर इज हाँ. डेफिनेटली दैट्स नो व्हाट डाउट इज गुड. क्योंकि वो दैट्स अभी अप्रैल रीबेस होगा तो वही होने वाला है. करेक्ट. यही सेगमेंट में ग्रोथ आएगा. ठीक है. बट आई मीन या सो आई थिंक टू मच ऑफ क्राउडिंग एंड एज यू से एवरी टाइम बहुत एसेट हैवी हो जाएगा बैलेंस शीट पे, तो देन देन इट डजंट कंट्रोल मेक की लिमिट सेंस. के ऊपर चला इट जाएगा डजंट वो. मेक सेंस. हाँ. कैपेक्स हैवी में अभी तो सेंस बनता ही नहीं है. मतलब एनी कंपनी विद वेरी हैवी कैपेक्स नीड्स टू बी, वी नीड टू दिस स्टे अवे. सेक्टर क्या हो रहा है ना, व्हाट आई वाज सीइंग, मुझे क्या लगा इस 40% इट शुड बी आइदर वे की चाहिए. तो 40% लग्जरी होना चाहिए और 60% वॉल्यूम होना चाहिए. बट वही है यहाँ पे. एक्चुअली, वही है एक्चुअली. आप हाँ. देखोगे हॉवर्ड का रिपोर्ट में द हम्म. लग्जरी अपर अप सेगमेंट हैज 34% सप्लाई शेयर, 37% डिमांड शेयर एंड 34% पाइपलाइन शेयर. ठीक है. हाँ. एंड वो क्या बोल रहा है, इसमें 70% का ऑक्यूपेंसी है. अपर अपस्केल अपर मिड में ही सेइंग 38% सप्लाई शेयर है एंड 41% डिमांड शेयर है. एंड मिड स्केल और इकोनॉमी में देयर इज 27%. ये सेगमेंट में अगर 40% आ गया देन इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं आएगा. ग्रोथ नहीं आएगा. करेक्ट. हाँ, तो ये कम होना चाहिए इसीलिए ग्रोथ आ रहा है.
करेक्ट 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 दैट्स व्हाट है ना, वो जो ग्रोथ जो है ना ओवरऑल होटल सेक्टर में आए, इट्स बिकॉज ऑफ द शिफ्ट इन द नो स्पेंडिंग पावर ऑफ इन द इकोनॉमी, कि यू हाँ। विल सी ना, मतलब मैं भी है ना 10 साल पहले मेरे पेरेंट्स को बोलूँ कि 10,000 का रूम लेते तो कोई नहीं लेने वाला था, हम 2-3 हजार में ही जाने के, बट हम्म। टुडे इट इज फाइन दैट पीपल आर गोइंग एट 10,000 15,000, इट्स नॉर्मल, यू गो टू लोनावला एंड ऑल, 10,000 तो इट इज नॉर्मल, एक नाइट का कोई भी लग्जरी होटल में जाओ वीकेंड्स को, इट्स बिन नॉर्म, वो रेगुलर हो गया, अभी ऐसा हो गया कि वो मिड साइज हो गया है। मिड साइज एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि 15-20 हजार, या 50,000, 1 लाख रुपए सबके वन नाइट के स्टेज के थे, होली एंड तुम्हारे दिवाली एंड न्यू ईयर के टाइम, दैट इज क्रेजी अमाउंट। 10,000 तो थोड़े टाइम बाद सस्ता लगने वाला है, 10,000 विल कम इन टू अफोर्डेबल कैटेगरी। दैट इज ऑल्सो, उसका एक और रीजन है कि होटल्स का सेगमेंट भी वैसे क्लासीफाई हो गया। लाइक व्हेन ओयो एंटर, दिस इज माय रॉ एनालिसिस, व्हेन ओयो एंटर द मार्केट, उन्होंने पूरा जो सेगमेंट का ही उन्होंने अलग कर दिया। लाइक 1,000 2,000 का होटल, मतलब ओयो बोला तो नो बडी इज गोइंग टू गो देयर। हाँ करेक्ट ठीक है, दे नो फॉर अ फैक्ट दैट दीज होटल्स आर नॉट गुड। करेक्ट। सो उस हिसाब से वो एक सेगमेंट चेंज हो गया है। तो फिर यू शुड, माई टेक इज यू शुड ऑलवेज लुक फॉर होटल्स विच आर मिड स्केल एंड अपर। ठीक है, वो जो 8,000 9,000 वाले एडीआर में आते हैं, दोज आर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव करेक्ट। ये मतलब फिर वो 3,000 वाले में तो कोई जाता नहीं है। मतलब वी शुड आस्क आवर सेल्फ वेदर वी विल गो। हम नहीं जाते तो फिर हाँ मतलब नहीं है ना फिर। वो यार उसमें भी पैसा कितना कमाएगा, यू विल नॉट मेक मच मनी, मार्जिन भी कम होंगे 3,000 में। Yeah, definitely, आई definitely. थिंक And you should not also go for companies which have lesser number of rooms and all. मतलब वो स्केलेबिलिटी का बात करते हैं, बट स्केलेबिलिटी आना चाहिए उस हिसाब से। इट इज वो नॉट डी दैट एच डी इजी। आर एच भी मैंने आपको बोला था ना, वो हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल वाला विवंती थ्री का क्या, सेवन क्या हुआ। विवंती का इट वाज इनटू लग्जरी ओनली ना, वो रिच कार्ड वेंटिव, नो वेंटिव का तो सर एडीआर ही, उसका पूरा पोर्टफोलियो एडीआर का एवरेज इज अबाउट 20,000। हाँ ओके। Oh, that is a different segment to operate because see उनका जो hotels है, those are that Anantara Maldives। हम्म। आप लॉग इन करके देखो अनंतरा मालदीव्स में 1,80,000 है पर नाइट का। पर नाइट। हाँ, वो फिर भी सस्ता है। सस्ता है मैरियट ऑपरेट्स एट 4.5 5 lakhs देयर पर नाइट। मालदीव्स में। हाँ, एंड देन उन लोग का श्रीलंका पर में ये नया सबका नहीं प्रॉपर्टी है। होगा ना, एवरेज रूम रेट वो उसमें वो सूट्स भी आते हैं ना, जो लग्जरी हाँ सूट्स हाँ, है वो भी सब उसमें सी आता है ना। आइडियली कैसा होता है ना, मतलब हाउ वी कंपेयर इज बेसिकली वी डोंट बी वी शुड नॉट बी टेकिंग, मतलब पूरा कंपनी का एडीआर हाँ 20,000 है, वो ऐसा हाँ नहीं है। मतलब उसका वो करेक्ट। लोएस्ट है वो 20,000 रहेगा, हाईएस्ट रहेगा 2 लाख का, तो फिर उसका एवरेज हाँ निकलता है वो। वही एवरेज बट तो फिर वो ज्यादा ही लाइक टू आएगा लाइक ना। देखना पड़ता है उसके लिए। करेक्ट करेक्ट ना। लाइक इसका प्रेसिडेंशियल सूट और उसका प्रेसिडेंशियल कितना करता है। कितना है हाँ। बट ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन इंडिकेटिव नंबर कि उसका 20,000 प्लस तो एडीआर है। इंडिया में 20,000 प्लस एडीआर में तो बहुत ही कम लोग ऑपरेट करते हैं। आई थिंक सिर्फ ओबरॉय करता है वो रेंज में। वो वो ओबरॉय अमर विलास वगैरह है, वो तो हाँ 2 लाख 3 लाख पर नाइट है उसका। तो करेक्ट। हाँ, तो आई एम जस्ट सेइंग कि वेंटिव इज अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। वेंटिव का एडवांटेज इज दे हैव देयर कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस पुणे, तो उसका एन्युटी बिजनेस से भी काफी अर्निंग आता है। ओके, ओके तो ओके। वो उस हिसाब से वो करता है, उसका अलग है। बट अगेन एज यू से सर, वो वी हैव टू वेट बिकॉज उसमें डेटा नहीं है कुछ भी। सी डीआरएचपी में कुछ डेटा दिया हुआ है, उसका रीसेंट पीपीटी में डेटा दिया हुआ है। बट देन वी नीड एटलीस्ट 2 3 क्वार्टर्स का रन रेट टू अंडरस्टैंड कि उसका कैसे चल रहा है। मतलब वेरी इनिशियल टाइम्स टू जज इट कि हाँ ये ऐसा एडीआर पे ऑपरेट करेगा तो इतना आएगा वगैरह वगैरह। उसका भी पाइपलाइन में वाराणसी और श्रीलंका में दे आर ओपनिंग 2 प्रॉपर्टीज नाउ। बट या बट इनका वही है व्हाट मेन तो, what क्या। I have seen in the past is the hotels industry, मतलब I was tracking ITC at that time, तो ITC का major business was coming from the tobacco one, हम्म, and the ITC hotels were said to be into negative zone, क्योंकि मतलब टोबैको का 100 रुपए कमा रहा है तो वो 50 रुपए लॉस कर रहा है, मतलब it was like, तो बराबर। consolidated profit was 50। So I was हम्म, tracking the hotel industry, तो what I found is majorly जैसे तुम बोल रहे थे कि इवेंट से ही हो रहा है, बट इवेंट्स है ना, इवेंट से यू डोंट मेक दैट मच ऑफ मनी जितना रूम से होता है। मतलब इवेंट से तो आई विल से ब्रेड एंड बटर चल रहा है, मतलब देयर इज नो ग्रोथ इन दैट, मतलब कैसा होता इवेंट है मतलब बिकॉज। कैसा होता है ना, आई विल, चलो मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। मैं नेम हाँ नहीं करूंगा, बट आई वेंट फॉर अ मीटिंग रिसेंटली टू बीकेसी। ठीक है, हाँ अभी उधर पूरा होटल बुक था ट्राइडेंट, मतलब हाँ रूम ही अवेलेबल नहीं है। हाँ तो वैसा होता है वो, मतलब इवेंट होता है ना, पूरा का पूरा होटल बुक। करेक्ट।
you अच्छा go ओके during Anant Ambani's wedding, ठीक है? हाँ तभी तो अनंत रेट बढ़ अंबानी के गया वेडिंग पे, दिस वाज ड्यूरिंग माय प्रीवियस जॉब, तो अनंत अंबानी के वेडिंग के टाइम पे देयर समबडी हु हैड कम डाउन टू माय ऑफिस फ्रॉम द यूएस, सो हाँ उसको सॉफिटेल में रहने का था बीकेसी में. हम्म सॉफिटेल वाज कोटिंग 95,000 पर नाइट. उसका एवरेज Right. आप आज देखोगे तो इट इज 30-32,000. इट वाज कोटिंग 95,000, एंड 95,000 में भी एक ही रूम बाकी था और एवरीथिंग एल्स वाज बुक्ड. ऑल होटल्स अक्रॉस बीकेसी वाज बुक्ड. इनफैक्ट ऑल होटल्स अक्रॉस मुंबई वाज बुक्ड इन दैट सेंस. करेक्ट करेक्ट हाँ एंड तभी अभी तो बढ़ आईपीएल गया चल रहा है, तो आईपीएल में आई हैव मैं मेरा कोई तो दूर का कोई तो है आईपीएल में. आई हम्म हैव लिटरली गॉन एंड सीन वो लोग आईटीसी, वो कौन सा है परेल में, आईटीसी ग्रैंड ग्रैंड मराठ, मराठा ग्रैंड मराठा उधर हाँ मैं जाके देखा हूँ. चेन्नई का टीम था, पूरा का पूरा होटल बुक कर दिया. हाँ अच्छा हाँ. हाँ, कुछ रूम्स नथिंग इज लेफ्ट. पूरा कोचिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, प्लेयर्स, ये वो सब का रूम बुक्ड. नथिंग इज लेफ्ट. तो ऐसे ही होता है. ये 2-4 महीने में आएगा. देन हाँ मॉनसून में डिमांड स्लोज डाउन फॉर होटल्स. करेक्ट बट ये उसके बाद. टूरिज्म इज पिकिंग अप ना वो दैट वाज एन यस. यस. आइसिंग ऑन द केक कि ये सब तो या. हो रहा है बट व्हाट इज पिकिंग अप इज द टूरिज्म तो अभी वही या. होता है कि क्या हो रहा था ना इंडस्ट्री में लेट्स से यू सर आईपीएल था तो आईपीएल के 3 महीने हो गए करेक्ट ये उतना आ गया फिर उसके बाद क्या उसके मीटिंग बाद वही वो सीजनलिटी में वो फिर सीजनलिटी हाँ थोड़ा फर्क है. मतलब विंटर में देन सी इट्स ऑल बेसिकली, इफ समबडी हैज अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन वन एरिया, दे आर नॉट गोइंग टू हाँ अर्न एनी मनी. करेक्ट ठीक है, आप वो भी नॉर्थ बात में है रहोगे तो कि विंटर में थोड़ा कमाओगे, समर में तो कुछ नहीं कमाने वाले. तो वैसे. आईटीसी का ऐसे हो रहा था एक विले पार्ले में एक अंधेरी में इतने बड़े बड़े होटल में जाएगा कौन बार बार वो नहीं, वो तो बिजनेस का वो उसका, बट उसका बहुत महंगा है आईटीसी का. उसका भी सेम प्रॉब्लम है सर, वेंटिव जैसा. वी डोंट हैव एनी डेटा टू एनालाइज इट एज ऑफ नाउ. अभी थोड़ा तो एक होगा दो ना अभी क्वार्टर का शायद से रिजल्ट आए तो फिर समझेगा. अभी स्प्लिट हुआ तो अभी डेटा आ जाएगा आएगा. अभी उसने पीपीटी में, पहले वो आईटीसी का कंसोलिडेटेड पीपीटी में नंबर्स देता था. हाँ बट माई टेक इज आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर 2-3 क्वार्टर्स फॉर द रिजल्ट एटलीस्ट, कि करेक्ट कैसे आ रहा है वगैरह. मतलब जंपिंग टू कंक्लूजन ऑन आईटीसी होटल्स, बिकॉज इतना बड़ा एंटिटी में, मैच्योर्ड एंटिटी में, फिर देन हम्म इट इज डिफिकल्ट ना. वैसे तो प्लेटो हो जाता है फिर वो बहुत. करेक्ट करेक्ट ठीक है. ओके अंजल यू वांट टू टॉक अबाउट सर ईवी क्या बोल रहे हो सर बीच में बोलने के लिए सर एक बार। हाँ हाँ बोलो हेलो बोलो हाँ बोलो सर, अंजल पर हम लोग ये सब बात कर रहे हैं सर कि होटल इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन, और डिलीज वगैरह भी हो रहे हैं। हाँ पर सर आप अपने अगर उसमें देखते हैं वेबसाइट पे, बीएससी की वेबसाइट पे, तो जो होटल इंडस्ट्री के ओवरऑल सेगमेंट में लगभग लगभग 1 to 2% डिक्रीज हो रहा है सर शेयर। सर उसका रीजन सर कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर टू विद टू दिस परसेंट न्यूज। और बीएससी के वेबसाइट पे मतलब समझा नहीं मुझे सॉरी, स्क्रीनर पे सर अगर हम लोग देखते हैं शेयर हाँ प्राइसेस के, तो शेयर हाँ प्राइसेस सर ओवरऑल, सर मैं जनरल हाँ में बता रहा हूँ, 1 to 2% सर डिक्रीज हो ही रहा है सर तो शेयर शेयर मार्केट का। प्राइस का उससे लेना देना नहीं है, हाँ बिकॉज ऑल ऑफ द होटल स्टॉक्स इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर आई थिंक आईएचसीएल, हम्म मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट इन मिड एंड स्मॉल कैप. तो इंडेक्स ही अगर 30% टूटा है, तो स्टॉक कितना भी अच्छा हो वो भी 30% टूटेगा. इट्स दैट वे ऐसा नहीं लाइक. होता है अनुपम ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक प्राइस अभी तुम अभी नहीं बोल सकते यू हैव टू ऑलवेज करेक्ट. टॉक इन 4 साल में क्या हुआ लास्ट चलो 2 साल में क्या हुआ है इंडस्ट्री को तो अगर तुम 2 साल की इंडस्ट्री बात करो तो स्टॉक बढ़े ही है सब वो हार्डली अभी 2-3 दिन में गिरे होगे तो बात अलग है या एक हाँ, हफ्ते में लास्ट या 15 जैसे ये डेज में मार्केट सर। गिरा है बट तुम देखो ना ओवरऑल उस दिन तो बात कर रहे थे ना हम एक सेकंड तुमको बताता हूँ मैं उस दिन ही तो हम बात करें मैंने पूरा इतना आर्टिकल में लिंक्डइन पे वो डाला था जीवीके वाला ना. नहीं मैंने एक आर्टिकल लिंक्डइन पे आया था हम बात कर रहे थे पूरा करेक्ट. इसका सब बढ़े नहीं ना सर, वो वैसा हम लोग को आइडिया अभी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज हाँ इट इज नॉट लाइक दैट. अभी फॉर एग्जांपल आई टेल यू वेरी सबसे इजी एग्जांपल बोलता हूँ. हाँ एसबीआई हैज फॉलन फ्रॉम 900 to 700. एंड हाँ तो आप नहीं बोल सकते कि अरे एसबीआई तो गिरा है, मार्केट अच्छा है. मार्केट मतलब अच्छा है अरे इंडेक्स भी 15% गिरा ना, उस हिसाब से देखने का. हाँ इसी ग्रोथ तो यहाँ पे भी हुआ है अनुपम सब इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ है लास्ट एक महीने में वन यू टॉक 1 मंथ सब में हुआ है तो हुआ है यस। इंडिगो हुआ है लुक एट इंडिगो इंडिगो तो मेरे पास कब से है तो इंडिगो में भी अच्छा खासा ग्रो है इतने बड़े फॉल में इंडिगो गिरा ही नहीं है मेरा उधर ही है इंडिगो का स्टॉक प्राइस सो ऐसा नहीं कि ये देखो तो लास्ट 1 साल ये 1 ईयर का चार्ट है जब हमारी यहाँ मतलब मार्केट पूरा गिरा है नवंबर से इफ यू टॉक अबाउट यहाँ से तो मार्केट पूरा गिरा था यानी ये रिकवर होने के बाद भी मतलब ओवरऑल तुम 1 साल देखो तो अप ही है ना ये तो इनफैक्ट सर मैं तो बोलता हूँ मैक्स यस देखो, उसका मैक्स पे क्लिक करो. मैक्स हाँ हाँ. सी मैं क्यों बोल रहा हूँ ना मैक्स, बिकॉज ये पूरा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ही कैपेक्स पे ही थोड़ा चलता है. मतलब कैपेक्स हो अब रहा है इंडिगो ले लो, उसका तो एयरलाइन ऑर्डर
अब यू हैव टू गो बैक एंड ट्रेस बोइंग का एयरलाइन ऑर्डर का डिलीवरी कितना है अभी। फॉर एग्जांपल इंडिगो यूज करता है एयरबस, तो एयरबस का डिलीवरी ही कम होता है। तो वो एक ऑर्डर आज प्लेस करेगा, 3 साल बाद उसको फ्लाइट मिलता है एक। तो फिर अच्छा, उसका इम्पैक्ट आपको लैग में आएगा ना। लैग में आएगा, मतलब करेक्ट, हाँ। हाँ, इट इज जस्ट लाइक ऑर्डर फ्लो इंडस्ट्री ऑल्सो, कैपिटल गुड्स वाला। मतलब मजगांव डॉक को 9 साल का ऑर्डर मिला तो वो उस हिसाब से चलेगा। हम्म। वो मतलब आपको आज उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, इट विल इम्पैक्ट कम नहीं, ओवर अ पीरियड करेक्ट, हाँ। टाइम। So, Anupam, it is always fundamental is always for long term. मतलब पर हम ऐसा सर नहीं बोलते कि एज ए इक्विटी रिसर्च सर, हम लोगों को सर मान के चलो हमारा कोई पोर्टफोलियो मैनेजर है सर, वो तो सर हाँ, डेली पैसा लगाएगा ना सर किसी न नहीं नहीं किसी नहीं, कंपनीज में विद नहीं बेस डेली ऑफ नहीं लगता न्यूज, है, डेली नहीं लगता है। ऑन एवरेज 5 डेज में एक बार। नहीं नहीं, तो वो सब ना लार्ज कैप्स में लगता है, ये जो होता है ना निफ्टी वाले स्टॉक्स होते हैं। जब म्यूचुअल फंड वाले जो बाय करते हैं ना, वो जो मतलब जो बाइंग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म चलो एक दिन, या फिर इंडस्ट्री साइकिल चेंज होता है, जैसे तुमने बोला ना अभी। अभी एग्जांपल एग्जांपल मैं तुमको दूं। 22 तक ना, 22 तक कौन सा इंडस्ट्री चल रहा था? कोई अलग इंडस्ट्री चल रहा था, ये इंडस्ट्री स्टैग्नेंट था। तो तुमको पता होना कि ये स्टैग्नेंट चल रहा है, यहाँ से अभी जब जैसे इसका मूवमेंट आएगा, तो यू शुड बी, तुमको ये एनालिसिस करना चाहिए यहाँ से 2 साल तक। मतलब कैसा होता है रिसर्च में, देर आर सेक्टर स्पेसिफिक एनालिस्ट। सो सेक्टर स्पेसिफिक, तुम लेते तुम टूरिज्म चल रहे हो, तो तुम्हारा इधर कॉल ही नहीं आएगा कुछ 2 साल। बट तुम कंटिन्यूस रिसर्च कर रहे हो कि सर कौन सा स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। टाइल से अगर तुम होते टूरिज्म में, तो तुमको ये टूरिज्म में ये एक्यूमुलेट करना चाहिए था, ये साल तक 2 साल तक। कंटिन्यूस बाय कर रहे हो तो है ना तुम्हारे पास पैसा, नीचे तो नहीं जा रहा ना स्टॉक, गिर तो नहीं रहा है, देख रहे हो? यस सर। तो ये ऐसा रिसर्च, तो तुमको वो भी होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक गिरना नहीं चाहिए, ये फर्क। 5-10 टक्के ठीक है ऊपर नीचे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 50 टक्का गिर गया स्टॉक तुम्हारा, है ना, 70 टक्का गिर गया स्टॉक, तो वैसा नहीं होना चाहिए। 10-15 टक्का ऊपर नीचे वो हो रहा है, देखो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर, इतना टफ नहीं है। तो यू नो कि दिस इज द टाइम टू कंसोलिडेट। एंड इफ यू कैन कम अप विद अ रिपोर्ट कि यहाँ से सर इंक्रीज योर होल्डिंग्स, ये तुमको ऐसा रिसर्च करना होगा। फॉर दैट सेंस अभी ये सेक्टर में तुम्हारा ऑटोज नहीं चला है, और बैंकिंग चला है। तो बैंकिंग का तुमको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में क्या चल रहा है। एफएमसीजी नहीं चला, एफएमसीजी इज इनटू कंसोलिडेशन, पूरा एफएमसीजी इज इनटू कंसोलिडेशन अभी तक। तुम देखोगे एचयूएल तो चला ही नहीं है लास्ट कितने सालों तीन में। साल ही देख लो सर, 3 साल ना, हाँ, 2020, 5 साल देख लो, सॉरी। लुक एट दिस। एचयूएल तो वहां का हुआ है, तो तुम अभी जाके एचयूएल पे रिसर्च करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तक ही है स्टॉक ये लास्ट 2 साल से, अभी भी गिर ही रहा है। बट ये देखो, कैन आई से दिस इज ऑल्सो कंसोलिडेशन पार्ट। पॉसिबल ही हो सकता है, मैं रॉन्ग भी आ सकता हूँ कि यहाँ से भी नीचे भी आए। बट मुझे नहीं लगता अभी ये कितने साल कंसोल हो रहा है। 2020 से लेकर 20, ये जो आई थिंक वो जो कोविड का रैली था, बट ये दिस वाज द हाई। यहाँ से ये लेवल्स पे वो अभी तक कांस्टेंट ही है, ये दो लेवल्स पे। तो 2000 के नीचे जा रहा है, 2000 3000 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो तुमको पता होना चाहिए कि कब इसका ब्रेकआउट होगा, या अभी लेना चाहिए, या और रुकना चाहिए, और नीचे जा सकता है, या कंसोल होगा। तो बट तुम रिसर्च करो तो तुमको पता था 2022 में तो टूरिज्म सेक्टर हैज इंक्रीज। तो वो रिसर्च किधर है तुम्हारा? दैट इज वाई वी हैव टू बी कंटिन्यूसली ऑन द रिसर्च पार्ट। तो हमेशा सेक्टर पकड़ने होते हैं, इस सेक्टर में क्या होता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम रोज बात करते हैं तुम्हारे इंडिया टूरिज्म की, फिर उसके बाद एफएमसीजी की आते हैं, फिर उसके बाद ऑटो आता है। एंड देन आफ्टर ऑटो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिटेल सेक्टर, रिटेल में क्या हो रहा है। तो आज था एपरल का न्यूज, हम बता, यस सर, है ना? आर्टिकल आया था सर आज कुछ। आर्टिकल तुम ही बता रहे हो ना एपरल का। हाँ तो क्या आया था एपरल का आज, बताओ, चलो अभी तुम बात कर सर, ही रहे अप्रैल का एक्चुअली डेटा है सर मेरे पास। हो। हाँ। तो डेटा इस तरह से है सर कि टेक्सटाइल एंड अप्रैल एक्सपोर्ट जो हुआ था सर FY 24 में, वो ओवरऑल मार्केट में तो $774 बिलियन का हुआ था। उसमें इंडिया का अराउंड 19%, ओ सॉरी सर एक सेकंड, अराउंड 4.5% का एक्सपोर्ट हुआ था सर ओवरऑल एक्सपोर्ट में सर, हाँ, विच इज अराउंड $34.8 बिलियन सर। और जिसमें कि सर 34.8 बिलियन के एक्सपोर्ट में अप्रैल सेगमेंट आपका 42% है, और बाकी जो रेस्ट है सर वो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है सर, अराउंड 38%, सॉरी 58। 58% सर, 58 सर। एक सेकंड, एक तो सेकंड। 58 प्लस 42 इज इक्वल टू 100 सर। 42% जो है सर $34.8 बिलियन में से, हाँ, वो 42% आपका अप्रैल सेगमेंट है, और बाकी 58% जो, सॉरी 48% जो है सर, वो आपका टेक्सटाइल में है सर। तो बट दैट बेसिकली सर इज इंडिया में, इंडिया, दिस इज यस सर, इंडिया या विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया टू ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट सर। एक्सपोर्ट ना? हाँ, हाँ ये ना, यही सर, हाँ यही ये वाला। ना, हाँ। हाँ
तो सर एक्चुअली ये है कि सर इंडिया में सर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो कॉटन इज टू मैन मेड फाइबर जो है सर, इंडिया में कॉटन का ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट होता है, मैन मेड फाइबर का कम होता है, जबकि वर्ल्ड हाँ इसका उल्टा चल रहा है। वर्ल्ड थर्टी करेक्ट, परसेंट 30%। कॉटन लेता है और मैन मेड फाइबर आपका 70% लेता है। सर कंडीशन, रीजन इज दैट सर कि इंडिया में सर प्राइसेस जो है सर मैन मेड फाइबर की वो 20% मोर है सर विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन टेक्सटाइल। अगर हम लोग FY24 की बात करते हैं सर, करेक्ट। तो सर और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल मार्केट जो है वो 2.37 बिलियन डॉलर्स का होने वाला, बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का होने वाला है 2030 में, जो जिसमें इंडिया हमेशा हमेशा की मतलब काफी पीछा रहेगा सर। और अगर हम लोग इंडिया और हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं सर ग्लोबल शेयर की, इंडिया टोटल एक्सपोर्ट में सर 4.5% है, बांग्लादेश 9.6% है, 6% है। वियतनाम 5.80% है, चाइना सर 34.6% से 29.80% आया है बिकॉज ऑफ वो टैरिफ की वजह से टैरिफ सर। का है वैसे, करेक्ट करेक्ट। यस सर। और सर एक और इसमें ये है कि सर कॉटन्स के बारे में बताया है सर। एक्चुअली कॉटन्स का सर एक्चुअली FY25 में जो प्रोडक्शन हुआ है सर 30 मिलियन बेल्स का हुआ है सर। और हाँ, सर इस बार जो एक्सपोर्ट हुआ है सर FY25 9 मंथ का अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियन वो बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि सर अगर FY14 में अगर कंपेयर करते हैं सर 10 ईयर्स का अगर हम लोग देखते हैं तो FY14 में सर 11.7 बिलियन मिलियन बेल्स का एक्सपोर्ट होता था सर। और इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है सर बेल्स का 2.6 मिलियन का, और जबकि एक्सपोर्ट होता है 1.5 मिलियन का। तो सर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है सर हमारे यहाँ कॉटन बेल्स का, ये भी सर इशू है इम्पोर्ट, सर। हाँ इंडिया इज इम्पोर्टिंग, वो हो गया, इंडिया इज एन हाँ। इम्पोर्टिंग कंट्री एंड पता और नहीं सर वो उसमें सर वो इंडिया जो कॉटन इंपोर्ट करता है ना, हाँ वो बेसिकली आपका हाई क्वालिटी कॉटन होता है, तो वो यस यस सर। इट इज ओनली मेड यूज टू मेक योर हाई क्वालिटी, क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी अपैरल, ठीक है, या हाई क्वालिटी मैट्रेसेस, ठीक है, ओके। उसके लिए वो कॉटन यूज होता है एंड वो प्राइमरली यूएस से लेता है। उसका प्राइसेस भी अभी डाउन है बिकॉज ऑफ द चाइना टैरिफ, अच्छा ठीक है, यस बट आइडियली इंडिया इज अ कॉटन सरप्लस कंट्री, यस सर यस सर। ओके। प्रोडक्शन वाइज सर इंडिया इज इसमें कॉटन एक, सरप्लस। हाँ यस सर, इसमें एक और आया था सर, यूएस और यूरोप का जो मार्केट है, अप्रैल मार्केट जो इंडिया से जाता है वो 66% का है सर। पर इंटरेस्ट। प्रॉब्लम ये है कि सर यूरोप ने 9.7% का टैरिफ और यूएस ने 11.5% का टैरिफ लगा रखा है सर। तो सर वो कैप्चर कर नहीं पा रहा पूरा मार्केट उस वजह से, टैरिफ की वजह से। अगर हम लोग इसका देखते हैं सर यूरोपियन यूनियन का, तो इसने जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रखा है सर बांग्लादेश को, और 1.6% ले रहा है वियतनाम से टैरिफ के नाम पे सर। ये बट आई इशू है थिंक सर। फिर ये ट्रेड वॉर्स मतलब जो रेसिप्रोकल लगा रहे हैं टैरिफ, इससे एक्सपेक्टेड है कि कम होगा कम। सर यूरोप से तो कम हो सकता है सर टैरिफ, क्योंकि सर अभी यूरोप से बात चल रहा है अभी हाँ यूरोप से चल रहा है इसीलिए। ना वो एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया। हाँ एफटीए चल रहा है बट इंडिया का यस एफटीए सर। यूरोप में इतना है नहीं, उसकी वजह से हाँ इम्पैक्ट ये है कि इंडिया इज नॉट, इसने करेक्ट बोला अभी कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एफटीए इंडिया इज नॉट एबल टू गेट बेटर प्राइसेस इन द यूरोप, करेक्ट। उस हिसाब से इवन टू सेल, ओके। बट अच्छा। यूएस के मामले में हम लोग को एक्चुअली इनफैक्ट यू आप डेटा निकाल के देख रहे हो टेक्सटाइल द लीस्ट रिस्की सेक्टर इन दिस रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि यूएस इंडिया पे ज्यादा टैरिफ लगाता है। हाँ इट्स अबाउट 10% यूएस और 9.5 इंडिया, ऐसा कुछ तो है। अच्छा, हाँ तो इट्स फिर इनको अपने पे क्या, 11.97, हाँ 11.5%। या 11.5 इंडिया यूएस के ये ना, ये इधर एक्सपोर्ट्स पे लिखा सर है। लगाता है। यूएस, द हाँ करेंटली दिस यूएस मार्केट इज इंटरेस्ट आस्किंग फॉर 11.5% टैरिफ ऑन ठीक है जो भी इंटरनेट। है, ठीक है, बट हाँ इंडिया यस इज यस स्टिल यस। ऑन पार और लेसर देन द यूएस, तो हाँ एंड हाँ एंड आल्सो वी हैव टू एनालाइज कि सेल्फ सफिशिएंसी में यूएस क्लॉथिंग में बहुत ही खराब सेल्फ सफिशिएंसी है। यू जस्ट गो टू एनी यूएस स्टोर एंड पिक अप एनी शर्ट, वो मेड इन वियतनाम बांग्लादेश इंडिया वाला ही मिलेगा। इंडिया वाला तो मिलता है, करेक्ट। वो आप यू टेक्सटाइल इज लीस्ट रिस्की सेक्टर नहीं बट टैरिफ के अभिषेक, मामले में। द प्रॉब्लम, हाँ टैरिफ क्या, बट द प्रॉब्लम इन टेक्सटाइल इज ना, इट इज लाइक इट्स अ लो मार्जिन बिजनेस, थोड़ा सा भी या प्राइस इधर उधर गया ना तो इनके करेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी में वाट लग जाती है। हाईएस्ट इम्पैक्ट इज योर प्राइस एंड डिजाइन। अगर डिजाइन एक क्वार्टर पे तुम्हारा इधर हाँ उधर हो गया तो बिजनेस बंद हो जाता है। एंड करेक्ट करेक्ट। आइडियली हम उस दिन बात कर रहे थे ना, सो हाँ द प्रॉब्लम इज डिमांड अगेन, मतलब अगर यूएस का जो डिमांड है इधर से और स्लो डाउन हो गया, ठीक है, हाँ देन देन द इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, इज हाँ इक्वल टू बी डेड, मतलब कुछ है ही नहीं फिर उसमें, तो कंपनी बंद करना पड़ेगा लिटरली उस हिसाब से। हाँ तो वो है टेक्सटाइल का एक मतलब भागते तो बहुत भागते, यू हैव टू कैच दैट साइकिल कि वो साइकिल करेक्ट। में क्या है, क्योंकि बहुत लो पी पे करते हैं, ट्रेड होते हैं एंड फिर सर उसमें आप इसका वैल्यूएशन देखो ना, शेयर प्राइस, वो कौन है वो, किरण,
हाँ, स्क्रीनर पे जाके वो K1 किरण। K1 के वो ये बनाता है, वो कौन सा कंपनी है, किलर, 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 हाँ। हाँ। केवल के वो देखो कैसे भागा, डबल हो गया स्टॉक वो टाइम पे हाँ, जब ये डिमांड आया, एंड देन डिमांड नाउ आया द correct। इवन आफ्टर सो इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी कंसोलिडेशन में चला गया वो। हाँ, वही बोल ना, इसके तुम देखोगे ना कभी फाइनेंशियल देखोगे ना, जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल। मेरे को बहुत देखा था मैंने, ये मेरे पास पूरा सेक्टर था। तो ना इसके पैट मार्जिन ना, ये देखो ना, 80 पे, मतलब ऑलरेडी कम्स एट अराउंड 5-10%। 10% भी नहीं है, 20% है अभी, ठीक है, बट यहाँ पे किसी काफी कम था। ये ठीक है, केवल किरण फिर भी स्टैंड अलोन है। वो कौन है, मुफ्ती, मुफ्ती किसका है, मुफ्ती, इसका ही है ना? मुफ्ती आई थिंक नहीं, लिस्टेड नहीं है मुफ्ती। अच्छा, ये देखा मुझे था मेरे पास, ये लिस्टेड है। पूरा पोर्टफोलियो था। लिस्टेड है लिस्टेड है सर मुफ्ती। मुफ्ती। मुफ्ती लिस्टेड है। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग नाम से लिस्टेड हाँ है। करेक्ट। अच्छा, क्रेडोस है क्या? क्रेडो, हाँ। अच्छा, क्रेडो ब्रांड्स। सॉरी, अभी लिस्ट हुआ था, करेक्ट, सॉरी, हाँ। हाँ, इसके वही मेरे को डर लगता है कि इसके मार्जिन ना काफी, पैट मार्जिन का ना इसमें वही हम कल कर रहे थे ना, कि जो रेंट कॉस्ट इज क्वाइट हाई। एम्प्लॉय कॉस्ट भी। एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं, रेंट कॉस्ट। हाँ ओके, हाँ इसमें करेक्ट। कैपेक्स नहीं होता ना, कैपेक्स नहीं मतलब होता, यस। कैपेक्स ज्यादा नहीं होता है। तो उसके पीपी तुमको नहीं दिखेंगे, तो वही कल वो लीज लायबिलिटीज इस पे था। तो ये सब इंडस्ट्री में इधर तुमको ऑपरेटिंग भले दिखता है 25 तक का मार्जिन, बट हम हम्म डेप्रिसिएशन उसमें करंट नहीं करते। डेप्रिसिएशन हो गया, फिर इंटरेस्ट हो गया, वो सब तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही है ये सब। करेक्ट। ये है ही नहीं कि तुम्हारे, इट इज नॉट एन। ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज्यादा है, दिस कंपनीज कैन गेट इजीली अफेक्टेड बाय सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, जो अभी हो रहा है बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट, मतलब अगर जियो पॉलिटिकल इश्यूज हुआ और वहां पर कुछ तुम्हारा शिपमेंट डिलेस हो गया, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तुमको उसके साथ। तो करेक्ट, हाँ, वो भी एक वो है। बहुत इम्पैक्टफुल होता है वो एक्चुअली। ये ऑपरेशनल रिस्क ज्यादा रहता है ना सर, तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कुछ भी इधर का उधर से सीधा मार्जिन छोड़ो, रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाएगा। हाँ, वो इसका इसका मेन तो वही है ना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ये सबका ज्यादा होता है। करेक्ट, वंस योर रेवेन्यू इज इम्पैक्टेड, यू आर गॉन। करेक्ट। कैन सी हो है ना, काफी ज्यादा है इसका। अभी यहाँ पे इसने किया, इसका मतलब यहाँ पे लोग ने एक्सपांशन किया ना, डेप्रिसिएशन बढ़ गया मतलब। एट द सेम टाइम सेल्स इतने नहीं बढ़े। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, इट्स फाइन। तो वही है, ये इट इज लाइक अ स्टार्टअप, यू लुक दिस कंपनी इज अ स्टार्टअप, की सेल्स बढ़ रहे हैं, इट्स फाइन। लोग दिख रहे हैं मॉल में, तो इट इज अ गुड साइन, बट नहीं दिख रहा है। तो मुझे वही ना, वो रेमंड और इसमें, क्योंकि वो हाई मार्जिन में था, तो आई वाज लाइकिंग इट, कि चलो आई हैव द नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, की भले इसका सेल्स गिरा बट मार्जिन तो मेंटेन कर रहा है ये, बड़े मार्जिन है। तो जब जब इनका ना प्रोडक्ट सेल होता है ना, 6-7 हज़ार रुपए का एक ट्राउजर, मतलब काफी महंगा हो गया ओवरऑल, एंड लोग ले रहे थे। इसीलिए तो लार्ज कैप चल रहा है सर अभी। अंजल, तुमको क्या ईवी पे? यस सर, एक न्यूज़ था ईवी का हाँ। कि चार्जिंग स्टेशन इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक लाइक 11 मंथ्स में हम्म। 10,000 से ज़्यादा ईवी स्टेशन अभी तक हुए हैं, जिसमें मेजर जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वो OMCs कंपनीज के हैं, जैसे आईओसी हो गया, BPCL हो गया, और बाकी के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स जो कंपनीज है, लाइक चार्ज जोन, टाटा पावर, स्टैटिक, ये सब सर कंपनी है। हाँ। अभी तक जो टोटल चार्जिंग स्टेशन अभी लाइक इंडिया में है वो 25,852 है, जिसमें हम्म। से 5,817 फेम टू जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था उससे सर बना हुआ है, और बाकी के OMC खुद के अपने फंड से बनाया है। हम्म। तो इसमें सर इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि जितने भी OMC ने बनाया है ना, जो लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जो, हम्म। तो उसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन ऑयल का है, लाइक आईओसी का है अकेला। पर उसका डेटा नहीं दिया है OMC ने टोटल कितने बनाए हैं 10,000 में से, हम्म। लेकिन उसका 50% है ऐसा। इसमें सर एक डेटा दिया है कि अ, कौन से स्टेट में कितने चार्जिंग स्टेशन बने हैं। तो उसमें सर टॉप है, लाइक फर्स्ट पे है उत्तर प्रदेश 2,900, तमिलनाडु सेकंड है 2,400, और महाराष्ट्र 2,000, मतलब ऐसा करके है। तो मैंने इसका एक डेटा देखा कि चार्जिंग स्टेशन अगर बने हैं तो वहाँ पे हम्म। कार्स लाइक ज़्यादा बिके हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 19 19 हम्म। लाइक टोटल जो ईवी सेल हो रहे हैं
तो वहां पे हो रहा है, इंक्लूडिंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सारा। महाराष्ट्र सर सेकंड पे है और कर्नाटका थर्ड पे है। तो सर अगर लाइक इसमें अगर ग्रोथ है, जैसा कि न्यूज पहले आ रहे थे कि लाइक बस 5x हो सकता है ग्रोथ, या फिर जो अपना ईवी का जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से सर उससे पहले चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो वो मैं डेटा बस दे रहा बट हूँ। अरे पर अंजल, ये न्यूज़ का क्या फायदा? हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना कि हम ईवीज पे फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि ईवीज का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कब बढ़ेगा, इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी। अभी बढ़ रहे हैं तो ठीक है, हमने उस दिन भी डिसाइड किया कि ठीक है तुम्हारे सिटी में बन रहे, मेरी सिटी में है ही नहीं, तो मैं ईवी लेने ही नहीं वाला हूँ ना। एंड प्लस उसका जो हमने डिसाइड भी किया था कि एक तुम बाहर जाके जब चार्ज करते हो, इट टेक्स 2 hours टू चार्ज एन ईवी। 2 घंटा तुम ट्रैवल में कैसे रुक सकते हो उस जगह पे? ओके सो सीएनजी स्टेशन को इतना टाइम लगता है भरने को। ठीक है सर, है तो तो इसके लिए मैंने इसमें देखा कि कौन से लाइक चार्जिंग ये मतलब दे रहे हैं। तो इसमें सर तीन तरह का था। एक होम चार्जिंग स्टेशन है, हाँ, एक स्लो चार्जर है, और एक फास्ट चार्जर जो अच्छा, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, दोनों। होम करेक्ट। चार्जिंग स्टेशन जो है, जो घर पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, हम्म। वो लाइक उतना कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल है, 20 to 25,000 के रेंज में आता है। तो आप उसको मतलब घर पे लगा सकते हो ऐसा। नहीं बट और अंजल, यस, ये ठीक है डेटा तुम बता रहे हो, बट इसमें किसका फायदा हो रहा है कॉल पे? मतलब इससे कोई स्टॉक नहीं निकल रहा है, ना इससे तुम्हारे मॉडल में कुछ इम्पैक्ट होने वाला है। बस ना तो हम ट्रैक कर रहे हैं ना हमको पता है कि इससे सब कुछ होने वाला है नहीं। तो प्रोबेबली आई थिंक सत्यजीत जो बोल रहा है केबल्स एंड वायर्स में, प्रोबेबली उसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा कि अगर ये है ना चार्जिंग स्टेशन में कुछ एंट्री हो रहा है, तो आई डोंट नो कि केबल्स एंड वायर्स में कितना इम्पैक्ट आता है। जबकि ऐसा है ना, आई थिंक इट इज ऑल रिलेटेड कि अल्ट्राटेक एंट्री इनटू है ना द ईवी सेगमेंट। तो प्रोबेबली है ना दिस इज केबल्स एंड वायर्स का वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगा, तो ये हो सकता है ऐसा घुमा फिरा के। तो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो भूल ही जाओ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ होने वाला है। सर वो हो भी रहा है। क्या? सो देर वॉज एन आर्टिकल दैट डे, सैटरडे को हाँ, था शायद, आफ्टर केबल्स एंड वायर्स व्हाट नेक्स्ट करके। हाँ। एंड वो एक्चुअली वो आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वीक मैंने एक्चुअली एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया था। तो हम्म। आप देखो सीमेंट में कितना एक्विजिशन हो रहा है। हाँ, करेक्ट। पूरा का पूरा इंडस्ट्री सिर्फ 3 प्लेयर में कंसोलिडेट हो रहा है अभी। करेक्ट। अदानी, आदित्य बिरला और अंबुजा। अंबुजा अंबुजा भी तो वही अदानी का है। ही है, सॉरी, हाँ। हाँ, और ये कौन, श्री सीमेंट और वो सब है, श्री श्री सीमेंट। सीमेंट है वो, हाँ, डालमिया भारत। डालमिया वो भारत एंड हाँ। बिरला को। बिरला, वो ये बिरला का और उसका ही है ना, बिरला का ही है ना वो भी। सो वो बिकॉज क्या है ना, अल्ट्राटेक इज टू आदित्य बिरला एंड दैट बिरला को इज सेपरेट टू। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मोटा मोटी आपका 2-3 इंडस्ट्री में ही कंसोलिडेट होगा वो। तो या ये सब कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, फिर कंपटीशन कम हो जाता है। करेक्ट। कंपटीशन कम होगा तो फिर क्या होता है, आपका मार्जिन तीनों में बढ़ जाएगा इजीली। करेक्ट। सो ये जो वो आज वही सर यही इसमें था कि केबल्स एंड वायर्स के जो एक्वेशन कर रहा है, प्रोबेबली वो उसी के लिए कर रहा है ना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहा है। आई एम उसके आई थिंक हाई हाई वोल्ट केबल लगता है। ऐसा कुछ है क्या सत्यजीत? इज सर, दैट वायर समथिंग? नहीं सर, डाटा बहुत है इसमें, बट ऐसे जो आप क्वेश्चन पूछे उसके रिगार्डिंग नहीं कि क्यों जा रहा है। और सर ये ईवी वाला था, तो इसमें ये क्वेश्चन था कि सर आईओसी बीपीसीएल ये लोग तो इससे इफेक्ट हो रहा है ना, इतना ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं इन सब में, तो वो थोड़ा मुझे पूछना था कि उससे इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या ये न्यूज में। ईवी कैपेक्स कर रहा है तो हाउ इट इज रिलेटेड, तो वही मैं था ना कि वायर्स एंड केबल, आई थिंक इट इज ऑन द दैट पार्ट कि जिस हिसाब से हो रहा है ना एक्विजिशन, कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बट एज ऑफ नाउ ना, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं सब बोल रहा हूँ कि व्हाट इफ एज ऑफ नाउ इफ इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग, तो ऑटो इंडस्ट्री इज नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट हम्म। करंटली। मतलब इजी, मतलब 1-2 साल में कुछ इम्पैक्ट नहीं होना, इट इज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बट द मेजर इम्पैक्ट विल बी ऑन दिस केबल्स एंड वायर्स, कि प्रोबेबली दो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड केबल्स ही इट इज ग्रोइंग। एंड आई थिंक वो ईवीज में बहुत ज्यादा केबल्स लगता है, क्योंकि जब तुम हम्म। वो करते हो हाई हाई वोल्टेज के केबल्स, दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग केबल्स, ऐसा है।
तो विद दैट सर इंडस्ट्री आई थिंक ये इंडस्ट्री ग्रो होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यस, कनेक्टेड तो है, वही मैं। हाँ। Sir, I am covering this wires and cables in HDFC. So I'd like to add some, हाँ आपका जो wires and cables. So cable is हाँ mainly into residential market. So हाँ, cables, ठीक है। 85% of the demand for this cables comes from this residential sector, and जो कि mainly B2C है more or less. हाँ And जो आपका cables है, cables में more than 90% demand comes from B2B segment. So B2B segment mainly due to the railways. So the हाँ, government is aggressively converting this ICE, diesel engines to electric engines. correct, So this is the major, and plus there is, rapid expansion towards metro infrastructure across tier 1 cities as correct। well as जो metro cities है वो भी है. And हम्म, sir, why, these आपका जो companies like Adani and Ultratech is been pouring into this wires and cables? हम्म, Because if you see आपका entire building material sector, so wires and cable sector is the only sector which is delivering a growth of 14% CAGR from last 3 years, sir. अच्छा। And demand is further expected to boost. And so there is another point that, Ultratech during the investment call for this हम्म, wires and cable, they have highlighted that there is a significant supply constraints going on in the industry. So they have अच्छा। given us a data point like if any government require a high voltage cable. So हम्म, high voltage cable are those cables जो capable है for transmitting electricity of about 32 megawatt का जो ट्रांसमिशन है वो केपेबल है दोज वायर्स उसमें नियरली इफ order is placed today, then the delivery time is nearly 3 to 3.5 months. So Oh, this is is it? significant. Yes, yes, sir. And sir, another point is that because the government is aggressively pushing for boosting this रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम भी है गवर्नमेंट के, लाइक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट नेम, उसके अकॉर्डिंग भी दैट इज फ्यूलिंग द डिमांड फॉर हाई वोल्टेज केबल्स. And although high voltage cables out हेलो. of this cable sector is under Yes, 10 sir. to 15% only, but the highest growth is coming from this sector only, cable sector. Cables may be high voltage. That is growing at a CAGR of 20 to 30%, sir. Okay, 20 to 30%, is it? Yes, sir. High voltage cable I will. segment within ये all cables. it is B2B only ना, high voltage तो Yes, B2B sir. होगा। यस सर. एंड सर बिकॉज एक और रीजन है व्हाई दीज आपका ये बिग हाउसेज आर एक्सपेंडिंग टू दिस सेगमेंट, बिकॉज आपने देखा होगा कि नियरली 35% ऑफ द डिमांड ऑफ सीमेंट कम्स फ्रॉम द B2B सेगमेंट, लाइक B2B आपका जो हाँ रेजिडेंशियल फ्लैट्स हो गया एंड ऑल दोस सेगमेंट. हाँ, एंड दीज कंपनीज हैव already have an existing relationship with the builders, अलग, so हाँ। naturally they have a good, already distribution network already established for them. एंड इफ यू सी लाइक अल्ट्राटेक का जो रिटेल टच पॉइंट एक्सपेंशन है एज ऑफ Q3, वो इज नियरली 1,55,000 टच पॉइंट्स. एंड अल्ट्राटेक का जो एक्सक्लूसिव लाइक बिल्डिंग मटेरियल रिटेल आउटलेट्स हैं, जो लाइक उसमें क्या होगा, आपका सीमेंट भी अल्ट्राटेक का है, आपका पेंट्स जो ग्रासिम वाला हाँ, पेंट्स भी उधर ही मिलेगा मैं तो आपको, एडेसिव में भी है, एंड एक और जो adhesives and pipes and fittings ऐसे। में भी वो एंटर करने, मतलब they have given a soft signal that they are planning to enter into pipes as well. So ये ओवरऑल उनका जो बिल्डिंग रिटेल टच पॉइंट्स है वो है नियरली 3,400 एज ऑन डेट. सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंडिंग इन आई दिस थिंक साइड. अदानी का तो रियलिटी भी है ना, वो Yes, sir. हॉस्टल भी And बना रहा है। Adani Realty, yes, sir. And हाँ, sir, last week ही था that Adani Realty is going to acquire Emaar Group of India. So जो गल्फ जो दुबई बेस्ड हाँ, ग्रुप है हाँ, वो इंडियन ऑपरेशन को एक्वायर करने वाला है वो. क्रेजी। यस सर. एंड सर दैट्स व्हाई जो ये ना आपका जो एग्जिस्टिंग, एंड एक और पॉइंट था कि बिकॉज आप हम सीमेंट में वी वर डिस्कसिंग लाइक व्हाई देयर इज सो मच एक्विजिशन गोइंग ऑन हाँ साउथ, बिकॉज दे आर रीजनल प्लेयर्स एंड दे आर हैविंग अ शेयर अंडर 10%. इधर भी ऐसा ही है दैट वायर्स एंड केबल्स में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है देट हैव अ शेयर ऑफ 70%. सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कमांड्स नियरली 30% ग्रोथ, 30% share. correct, So these group, with the, although the report has highlighted multiple brokerage houses that the share of existing player will not be affected that,
big because it will take quite time to establish their manufacturing facility. But जो around the value migration will be swiftly towards these from unorganized player to these big houses going forward. Because I can also see that when I let's say if I was looking at a flat, तो ऐसे पूछते हैं ना हम कि ये केबल किसके बनाते हैं यहाँ पे, है ना, फिनोलेक्स के है या है ना Yes, पॉलीकैब sir. के है, वी नो बिकॉज एज अ ब्रांड कल कुछ हो गया तो मेरे घर Yes, पे sir. केबल का काम चलता, ऑब्वियसली आई विल नॉट गो फॉर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की पता ही नहीं है क्या है, इवन इफ इट्स सस्ते भी हो गए फिर भी हम लगे लाइफ के साथ कौन मस्ती करेगा, Yes, yes, sir. लाइक And दैट। so, because, and another reason is because क्या है कि जो in this wires and cable segment में the highest market share that company has is, आपका polycab, and polycab का market share is just at 20% of overall market. So, अच्छा there are small players which are having a bunch of 5 to 6% share. That makes these houses a good, target for acquisition. ओके, Yes, sir. रतन has given value 23 का है, but this is what ये capex figure, it is like this is the polycab is doing that kind of capex कर रहे हैं क्या तुम Yes, हेमंत, yes, yes, क्यों sir. कर रहे हैं सब Sir, They are- because there is a supply constraint in this sector, sir. तो इसमें फिर वो how does the volume defines कि how is that, मतलब वायर Volume देखते हैं is वॉल्यूम मेट्रिक, defined, volume is in term of kilometer. किलोमीटर, अच्छा, ओके। Yes, kilometer. So do you have the data कि how much kilometers of wires any मतलब स्पेसिफिकली कितना सेल होता है किलोमीटर्स ऑफ वायर? Yes, sir. मैंने अभी रिपोर्ट बनाया था वायर्स एंड केबल्स का। वो हाँ, मैं एग्जैक्टली अभी भूल गया हूँ मैं, बट अच्छा, आपको शेयर कर देता हूँ रिपोर्ट में। ओके। तो Yes. who makes the तो highest? रेलटेल करता है क्या कुछ? Sorry? रेलटेल है क्या Yeah, वायर केबल में? so yeah, Railtel is into, communication cables, mainly into. ओके। And communication cables, out of this cable contributes nearly 20, mainly 12 to 14%. नहीं, क्योंकि बिकॉज आई थिंक बहुत साल पहले आई रेड समवेयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आई थिंक आई मेड माय इन्वेस्टमेंट। तो रेलटेल आई थिंक हैज अबाउट 18,000 किलोमीटर ऑफ कम्युनिकेशन वायर का कुछ सम आई डोंट नो व्हाट यू कॉल, उसका पास ऑलमोस्ट आई थिंक द होल ऑफ रेलवेज इज कवर्ड बाय रेलटेल। या सो अभी क्या है, कम्युनिकेशन में एक और डिमांड जो फ्यूल कर रहा है, लाइक 5G एक्सपेंशन भी है आपका। सो रेलटेल इज ऑल्सो फोरिंग इनटू दोस केबल्स एज वेल, हाई फाइबर ऑप्टिक केबल्स। हाँ, वो उसका जो रेलवे लाइन का जो वायर है उसी को वो लीज आउट कर सकता है ना। बट जो आपका रेल टेल का जो वायर्स है, वो अभी एक और टेक्नोलॉजी आया है, लाइक अभी जो करंटली 2 साल पहले तक था, वो मेनली इनटू फाइबर ऑप्टिक केबल्स, एंड देयर इज अनदर न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज बीन डेवलप्ड, और जो कि है अभी, वो लाइक आपका पॉलीकैब और की है जो मेजर डोमिनेटर इज लाइक डबल फाइबर ऑप्टिक डिजिटल केबल्स, like they have seen this. So the advantage of this, there will be a faster communication across these through these cables. So one ओके, second. थैंक्स। Hemant, tell me how is this cable segment divided? मतलब cables में क्या क्या आता है? If I talk about cables या wires में? So आपका cables is mainly divided into three based on the voltage. So the low voltage cables, medium voltage cables, and high voltage cables. Okay. And So where are they used? the high Yeah. voltage, Sorry, share. Sorry, the share in overall. okay, so the high voltage, so the highest share is of low voltage cable. So the low voltage cable is nearly 70 to 75%, sir, of overall market. Okay, 75% of the overall market. Yes, sir. And where it is used? Real estate? या अपने सो या ये सो B2B में जो आपका रियल एस्टेट भी होगा इसमें, हाँ, एंड जो आपका कम्युनिकेशन केबल्स भी लो वोल्टेज केबल्स में ही है सर। अच्छा, रियल एस्टेट एंड लो कम्युनिकेशन जो हमारे यस 4G 5G में लगता है वो, यस सर, यस सर, सर अच्छा। 5G। एंड मीडियम एंड वोल्टेजेस? सर मीडियम वोल्टेज इज वोल्टेज जो कैपेबल है अबाउट मोर देन 3, आपका जो है, इसका जो था, एक सेकेंड, उसमें था सर 33 किलो वोट तक का जो कैपेबल है, आर कैटेगराइज अंडर द मीडियम वोल्टेज 3 to 33, जो मेगावाट का जो करंट है अच्छा, वो, एंड ओके, इट इज नियरली 15% सर। 3 to 33, यस सर, एंड अबो 15%, 33 इज हाई वोल्टेज। अच्छा।
दिस इज लाइक 10% बचा ना। यस सर, सो जो बेसिकली आपका जो मीडियम एंड हाई वोल्टेज मेनली टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, सो जो आपका पावर ग्रिड एंड इधर से जो ट्रांसफर होता है वो वाला अच्छा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा जो पावर कंपनीज यूज करते होगे। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, एंड जो आपका हाई वोल्टेज भी उसी में है, एंड दिस इज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन दिस थ्री। ये भी इसी में। बट व्हाट अबाउट दैट रेलवेज, तो रेलवेज में क्या चल लग रहा है? वायर्स। मीडियम मीडियम वोल्टेज सर, मीडियम वोल्टेज। अच्छा, तो ये रेलवेज भी है ना। यस। एंड रेलवेज, और तो वायर्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केबल्स एंड वायर्स? सो सर केबल्स आर मेनली इनटू आपका इंफ्रास्ट्रक्चर साइड्स में, जो लाइक ओके, आपका ये जो दीज वायर्स आर मेनली इनटू जो हाउस होल्ड्स में जो हम लगाते हैं, जो आपका स्विचेस में कनेक्ट होता है जो वायर्स, वो सब उसमें है। तभी द रेजिडेंशियल मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स 85% ऑफ द डिमांड फॉर वायर्स। 5%, ओके। तो नहीं, आई वाज सेइंग कि ये लो वोल्टेज केबल्स एंड वायर्स में व्हाट इज द डिफरेंस, या सेम ही होता है? नहीं सर, डिफरेंट है। सो द लो वोल्टेज केबल्स आपको घर में नहीं लगा सकते सर उसको। अच्छा, ओके, हाँ, दिस आई कैन से, वो बिल्डिंग में जो लगते हैं वो लिफ्ट और ये भी। यस सर, गॉट इट, यस गॉट इट। सर। अच्छा, ओके, हाँ, ये हमारे एसीज हाउस और होल्ड अप्लायंसेस में हाउस जो होल्ड। अच्छा, लगता आई विल से दिस इज, हाँ, रियल एस्टेट, तो दिस विल बी हाउस होल्ड ना। है। यस। आई थिंक दिस विल बी, वो केबल्स विल बी फॉर कंस्ट्रक्शन। लो यस। वोल्टेज ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन होगा ना। एंड जो तुमने कम्युनिकेशन केबल्स, कम्युनिकेशन आर केबल्स या उसके भी वायर्स होते हैं या नहीं? नहीं, कम्युनिकेशन केबल्स होता है सर। कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन के लगते हैं, करेक्ट। रियल एस्टेट, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ, और क्या होता है, और का यूज होता है वायर्स? तो मेन तो यही है, यूसेज अच्छा, फिफ्टीन ओके, परसेंट ठीक है, मेजरली तो ओके। तो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से पॉलीकैब एग्जांपल, तो पॉलीकैब में इफ आई वांट टू ट्रैक पॉलीकैब, ओके, यस सर। तो पॉलीकैब में केबल्स का ज्यादा इम्पैक्ट है या वायर्स है? सर पोलीकैब, अगर आप देखोगे मार्केट शेयर विद इन सेगमेंटेशन, सो पोलीकैब इन केबल्स हैज 25% मार्केट शेयर। नहीं, उसका एंड पर्सनली हाउ इट इज डिवाइड। सो पोलीकैब में जो आपका सेगमेंटेशन है, आपका रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू ब्रेकअप इज 65-35 अप्रोक्सीमेटली सर, Q3 नंबर। दिस 65 इज वायर। 65 केबल सर। अच्छा, केबल्स है, अच्छा, ओके। एंड विच इज द हाई मार्जिन इन दिस? कौन किसका सर मार्जिन आया था केबल्स का? Sir, sir, wires are high margin because cables are B2B business and the ओके, margins are हाँ, really, competitive because they are mostly based on the टेंडर पे था, अच्छा, ओके, हाँ, ये tender सब base. सारा होता है। And yes, sir, so they have to तो quote फिर aggressive तो ये price. पॉलीकैब का कस्टमर कौन होता है फिर? तो केबल्स polycab का केबल्स में गवर्नमेंट। केबल्स में आपका जो एक तो पावर ग्रिड, जो पावर कॉरपोरेशन होगा आपका, हाँ, एंड दूसरा होगा जो रेलवे भी होगा आपका, क्योंकि बिकॉज ऑफ वोल्टेज में जो इलेक्ट्रिक केबल्स में जो केबल्स भी डिप्लॉय करना होता है फॉर हाँ, इलेक्ट्रिक जो मेट्रो के लिए, वो सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइक ऑल। एंड इसमें मार्जिन आर रियली सर 10%, 10 to 8% ही है मार्जिन सर बिजनेस में, हाँ, टाइम टेंडर वाइट्स एंड बिजनेस में आई थिंक नहीं होगा। केबल। वायर मेक्स व्हाट, 20-30 मार्जिन्स ऑपरेटिंग? सर वायर्स में नियरली आपका देखोगे 13 to 15% है सर, वायर्स में अच्छा, 13 पॉलीकैब to का। 15, अच्छा, ठीक ओके, है, सो मार्केट लीडर है सर, उसी का मतलब देख सकते हैं। अच्छा, ओके, ओके, ग्रेट। आई वाज नॉट, मतलब मुझे कभी देखा नहीं था वायर इंडस्ट्री। अगर वो ऑलवेज, क्योंकि इसमें वही है कि देखने के लिए मुझे कुछ चैनल चेक कर ही नहीं सकता ना केबल्स में। यस सर, तो तुम क्या चैनल चेक करो, तो वही है, तो फिर मेरे को मैक्रो इकोनॉमी ध्यान रखना कि रेलवेज में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है। यस सर, वो उसी पे बेसिस पे लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग किधर क्या है, उसके इधर क्या बेसिस हो पे रहा है, फिर। करेक्ट, हाँ। तो ये आज न्यूज में क्या था, व्हाट वाज दिस इन द नेम, में पढ़ा नहीं है। ये सर वही डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई दीज आर अडानी एंड अल्ट्राटेक आर फोरिंग इनटू वायर्स एंड केबल्स, हाउ इट सूट्स विद देयर एग्जिस्टिंग प्लान मार्केट फॉर शेयर के बारे में बताया है कि कितना मार्केट मार्केट शेयर। शेयर है, कितना ग्रोथ हो सकता है, और कितना न्यू कंपनी के लिए कितना एग्जिस्टिंग मार्केट है, मतलब ये सब ज्यादा डिटेल्स है। अच्छा, बोलो ना, क्या पढ़ा तुमने सत्यजीत, यू टेल, व्हाट हैव यू? सर मार्केट साइज के बारे में पता चला, लाइक 70,000 करोड़ ऑर्गेनाइज मार्केट है,
एंड ग्रोथ है अराउंड 15% कैगर के अराउंड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और 31 FY 31 तक सर बता रहे हैं कि 1.4 लाख करोड़ तक का ये मार्केट ग्रो हो सकता है। और हैवी कैपेक्स है सर, प्लान किए हुए हैं सारे कंपनियों ने अराउंड 6,000 करोड़ 2 इयर्स में कैपेक्स इंक्लूड होने वाला है सर। तो ये लाइक हैवी कैपेक्स इसमें जा रहा है सर स्ट्रेटेजी में। रीजन? रीजन सर वही है ग्रोथ। ये ग्रोथ का से आ रहा है। सर इसमें तो मतलब बता रहा है कि ज्यादातर रेलवे में 40% रेलवे के उसमें जा रहा है, डिमांड है। हाँ, क्योंकि ये इतनी कंपनियां हैं वो डिमांड अभी पूरा नहीं कर पा रही हैं। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए उसमें पता भी चला और इसमें भी लिखा हुआ है। ओके। So I think ये if I talk about majorly real estate wires में, and if Polycab is into majorly into cables, so I think companies जो wires में that we have to focus if it's the real estate driven market. If it's construction driven market, so obviously Polycab will have a good run in that. या फिर the one who has highest cable segment. अभी पता नहीं अभी वही होगा। The question is ये अदानी आने के वजह से इनको फायदा हो ना, मतलब अदानी को फायदा हो ना हो, इनको नुकसान जरूर होगा। That is the major thing in this, that if whatever happens, this Adani might not be able to turn around the wires and cable business, but probably वो ultra Polycab and Kia का शेयर निकल गया because airports में इसमें अदानी के cables लगेंगे अभी। Yeah, that is a big issue. Now I don't know how this लिखा है कुछ price wars में, I have not read this article. Okay, Satish, just make an article ना यहाँ पे, इसका newsletter बनाओ, श्योर श्योर जितने भी सर, data है बना just रहा send हूँ me सर ना, मैं। हाँ भेजता and हूँ now सर। make sure you प्राइस अभी। वॉर में सर ये बोला है कि बहुत कम मार्जिन है सर, लाइक 10 to 15% ही है। हाँ, तो ज्यादा कुछ इफेक्टिव प्राइस वॉर में बोल रहा है नहीं पड़ेगा, मतलब 1-2% का ऊपर नीचे होगा। क्योंकि ऑलरेडी क्या है मार्केट में जो हाईएस्ट सेलिंग है मतलब प्राइस के बेसिस पे तो हैवेल्स है। और बाकी उससे जो कम मतलब रिटेल में है कि ऑलरेडी 30% डिस्काउंट पे आर केबल और फिनिक्स लक्स केबल अवेलेबल है। तो वही मार्जिन बहुत कम है सर, वही बताया प्राइस वॉर में सिर्फ मार्जिन बोला कि 10 से 12% है, जो कि हाइक होगा 2 से 3%, इतना ही लिखा है अभी इसमें। correct. अच्छा, और आरआर केबल्स का बताया है कि 24% डिस्काउंट टू हैवेल्स, मतलब हैवेल्स का जो प्राइस है मार्केट में उससे आरआर केबल 24% डिस्काउंट में देता है। तो वो डोमिनेट कर रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर इन लाइक लोकल पीपल, लाइक जो जिनको थोड़ा सस्ते में घर करना है नीचे के तरफ। क्यों है, सस्ता है क्या वो, मतलब कि सस्ता मिलता हाँ है क्या? सर, हाँ सस्ता मिलता है सर। आप गांव में चाहे यहाँ वहाँ विलेज क्षेत्र में जाओगे तो आरा केबल्स का ज्यादा मार्केट है। और ये 24% प्राइस उसका लेस है सर उसके प्राइस से, हेवल्स के वायर्स से। नॉट केबल्स, मैं वायर्स की बात कर रहा हूँ, बी हेवल्स, टू आई सी थिंक की बात हेवल्स कर तो रहा प्रीमियम में आता है ना, तो आई हूँ। थिंक। यस सर, यस सर। बट तो हाँ। फिर भी सर आरा केबल का अभी बहुत ज्यादा मार्केट मतलब 24% डिस्काउंट पे दे रहा है। तो सर आप जान रहे हो प्राइस ड्रिवन मार्केट है। फिर भी कितने भी है लोग नहीं मतलब जो मिड सेक्शन है या लोअर मिड है वो लोग आर केबल्स पे ही जाते हैं। तो ये मतलब B2C का बता रहा हूँ, केबल्स पे अभी नहीं मैं उस पे ज्यादा डिटेल में, वो पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक सर वही B2B ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, B2C स्टिल यू कैन ट्रैक यस सर मार्केट। सर। इवन exports are flourishing in this wires and cables. So आप देखोगे exports का growth was into 30% CAGR types. From FY19 to FY24, the export growth was nearly 31% CAGR, and it is projected that growth for the growth of export for this wires and cable segment is poised to grow by more than 35% going forward. Oh, okay, So this is the export surplus industry. So, okay, great. तो why exports, क्या हो रहा है exports में ऐसा? so breakup is not available, sir, for नहीं, wires मतलब and what is cable. happening in exports overall? Why is export increasing? या ऐसे ही? सर अभी एक्चुअली एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता एक्चुअली। वो भी मेनली इनटू आपका देखोगे मेजर एक्सपोर्ट है यूएसए में ही सर। नियरली 18% ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स आर तो ये गोस सब टू एक्सपोर्ट यूएस। करते हैं, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आरआर केबल हैज अ हाईएस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट। ओके, ओके। तो एक्सपोर्ट के फिर मार्जिन ज्यादा हो गए? यस सर। सो दे एक तो जो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम भी है उसमें मल्टीपल। ओके, ओके, ग्रेट। Okay. So guys, ये wires and cables also industry to look at, just because Adani has entered. So now probably now what is the impact? Now I think it's a good segment to look at.
because the way India digitalization हो रहा है, and in the digitalization cables will be used. I think wires will be used the most. Cables का obviously B2B है, तो I will say avoid. मतलब you have to know about the economy. But wires तो हो सकता है because this as Hemant is tracking. So cement में मतलब infrastructure जब हम EVs की बात करते हैं, अंजल for that channel तो EVs की बात करते हैं तो cables and wires तो पहले आता है, ऑटोमोबाइल्स तो बाद में एंड में आ गया. अगर इफ यू आर नो कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग ऑन ईवी सेक्टर कि ईवी में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, ईवी और वो दिख रहा है ना, इट इज ग्रोइंग. आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट. तो वो भी एक सेगमेंट आई थिंक विल ऐड इन द केबल्स एंड वायर जो अभी तक नहीं है. केबल्स एंड वायर जैसे इसने बोला था यहाँ पे, वी जस्ट नाउ रोड, इट इज ओनली अबाउट रियल इस्टेट एंड रियल इस्टेट भी है, तो बाकी आई थिंक द सेगमेंट विल ग्रो जैसे जैसे ईवी का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ता है, तो दैट सेगमेंट विल आल्सो ग्रो इन इंडिया. Am I right, Hemant? Probably. Yes, sir. If that segment will also start growing, and incremental growth. It will additional growth for Additionally, this. Yes. And हाँ. sir, plus market is very cluttered. मतलब limited players हैं actually यहाँ पर. Like organize में देखा जाए तो nearly 60% शेयर ये टॉप 5 प्लेयर्स ही कर रहे हैं. लाइक आपका पॉलीकैब, आर केबल हो गया, हाँ. एंड वी-गार्ड, हेवेल्स एंड फिनोलेक्स केबल. वी कार्ड. अच्छा. आई थिंक फिर ये एसीज का जो हो रहा है ना, गर्मी बढ़ रही है इन द इनफैक्ट, आई थिंक व्हेन द you require high voltage ACs at that time, I think the cables also has to be changed because you cannot put the same cables in a high voltage AC. So yes तो sir, फेज plus चेंज होता है. it will fuel the demand for switch gear as well. जो आपका Correct. MCs होता है. So these companies are also in switch gear as well. So अच्छा. हाँ, वो तो आई थिंक इट कम्स विद वो वायर्स लगाते हैं, स्विच गेज भी लगाते ही है. yes sir, yes sir. हाँ. So it is a type industry to look on. Look on. मतलब हाँ, correct. yes sir. Obviously when we are talking about this dark stores increasing and if they require high voltage fridge, and obviously Yes sir. the temperature is increasing in India, so I think the cables needs to be changed. Cannot put the same cables everywhere. Because that day, सर एक छोटा सा I was visiting a real estate property that was around 4.5 BHK in Pune. So he has already fit 4 to 5 ACs uh, in that price point only, whatever price he was selling me, in that price point it was 4 to 5 ACs were already fit in, and that were high voltage AC, क्योंकि इतने बड़े रूम को ठंडा करने के लिए you cannot use your regular wires, or maybe 4 wires तो अलग लगे होंगे वो सेगमेंट को प्रॉब्ली. उसका जहाँ से आता होगा ऐसे. समवन वाज टेलिंग मी कि ये डायरेक्ट इट विल बी अ सेंट्रलाइज्ड एसी. तुम ही बोल रहे थे ना अदानी कुछ कर रहा है फॉर द. Yes sir, हाँ, yes. तुम ही बोल रहे थे ना. Yes sir. The entire building now that concept is coming that you have a generator type ACs outside a building, तो उसके लिए भी कितना बड़ा केबल लगेगा. Yes sir. And plus वो जो rural electrification push is is a main thriving for this cable segment sir. Because nearly 30% villages of India, as per Power Grid report, is still unpenetrated in terms of electrification. I think India, Mumbai नहीं है तो forget about other cities. You can't Yes. find मुंबई में अभी तक लाइट्स जाते हैं, so can believe what is happening in other cities. Yes. Okay guys. सर एक डेटा पॉइंट था छोटा हाँ सा. बोलो. हाँ बोलो ठीक वैसे. है, जो फैशन एंड एप्पल का शीट है ना, ठीक हाँ. है, उसमें यू कैन ऑल्सो ऐड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा ऑफ अदर कंट्रीज. सो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है ना, हाँ. उसके पीपीटी में सब कंट्री का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा है, मेजर कंट्रीज का. अच्छा. आप ओपन करके एक बार देख सकते हो तो ठीक है. ओके. ओके. बट गोकुलदास. हाँ, उसके पीपीटी में मेरे को भी स्लाइड नंबर याद नहीं है, बट उससे नीचे जाओगे तो इंपोर्ट्स बाय यूएस, यूरोपियन यूनियन, फिर आपका चाइना, एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया, ई चाइना, वियतनाम, सब डेटा दिया हुआ है, सबका सब. अभी के क्वार्टर का कभी है? लास्ट क्वार्टर. हाँ, अभी आप ओपन कर सकते हो तो एक बार करो ना, मैं दिखा ही देता हूँ आपको. सब क्वार्टर में पे दिया हुआ है आया होगा, मोस्टली. तो स्क्रीनर जब पे से, आया होगा. हाँ स्क्रीन पे है ना, जियो ए ए ए गोकुलदास है ना. अच्छा. डॉक्यूमेंट्स, वेब का पीपीटी कौन है मेरा? हाँ, नीचे बहुत अच्छा रिपोर्ट है सर, मतलब नीचे आओ नीचे आओ.
नहीं नहीं, नीचे है थोड़ा, आप जा सकते हो थोड़ा स्पीड में ऐसा। हाँ ये क्या है? अच्छा वो उसका कंपनी का, हाँ ये देखो सर। What is this? Retail store sales continue to exhibit, ये क्या है? सर ये यूएस क्लोथिंग रिटेल स्टोर सेल्स का ग्रोथ है। ओके। फिर ओके ये यूएस ई कॉम का क्लोथिंग सेल्स है। फिर ये यूएस क्लोथिंग का रिटेल यूके का है। फिर आपका प्राइस वर्सेस वॉल्यूम का है। फिर आप नीचे जाओगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसमें देखो यूएस एपरल इंपोर्ट्स अच्छा एक्सपोर्ट्स। यूएस, अच्छा यूएस का है क्या ये? ओके इंडिया का भी है, ठीक है, बट ये यूएस का इसलिए बिकॉज ये कंपनी का एक्सपोर्ट है ना, इसलिए कंपनी एक्सपोर्ट ही करते हैं ना सबसे ज्यादा हाँ यूएस हाँ को। हाँ, 90% यूएस एक्सपोर्ट है इंडिया सर। अपैरल एक्सपोर्ट आप लिखा है। और इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी है बहुत कुछ, जैसे 2-3 स्लाइड है इसका। चाइना लूजिंग मार्केट शेयर, अच्छा मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज टू यूएस, ये सोर्स क्या है? आईटीसी? नहीं वो नहीं पता क्या सोर्स है वो। चाइना इज 22, ये क्या रिसेंट डेटा है क्या? 24 ये जैन टू नवंबर 24। जैन टू नवंबर का। बट इट्स अ गुड डेटा टू, मतलब अपने हाँ हाइजीन के लिए मेंटेन करने के लिए अच्छा डेटा है उस हाँ, हिसाब से। ये तो था, ये हम बात कर ही रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट्स कितना। व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग? इंडियन अपैरल एक्सपोर्ट शो द साइन ऑफ रिकवरी। क्या हर हर क्वार्टर में आता है क्या ये प्रेजेंटेशन? हर क्वार्टर मोस्टली, तो अभी जब से इंटीग्रेटेड चालू किया है तो हर क्वार्टर में आ ही रहा है। ओके सर अच्छा ये इसमें भी क्या? एक्सपोर्ट टैरिफ होगा क्या, रेसिप्रोकल नहीं टैरिफ, होगा, राइट? नहीं 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 होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तारीफ तो अभी लगा ना। ना रेसिप्रोकल टैरिफ विल नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं ये सेक्टर पे काम करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों ये नहीं नहीं लगेगा लगेगा। अभिषेक? तो सर इस इंडिया, पे टैरिफ, ओके। इसको इसको टैरिफ इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज हमने बोला ना, क्योंकि यूएस ज्यादा टैरिफ लगाता है। अच्छा और इसको टैरिफ लगने का इतना चांस नहीं है, और नहीं भी मतलब टैरिफ, इसने अच्छा टैरिफ रिस्क भी ऐसा करके रखा है इसने। अभी इसका देखो, आप आगे वाले स्लाइड में जाओगे, ऊपर वाले स्लाइड में, तो हाँ इसने 2 कंपनीज को एक्वायर किया था, ठीक है। तो वो अच्छा 2 कंपनीज को जो एक्वायर किया था वो केनिया और उधर सब ड्यूटी फ्री जोन में ऑपरेट करता है। ओके। हाँ इसीलिए वो, इसको टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं आएगा सर इतना। पर मतलब बीच इसको में एक न्यूज आया था ये टैरिफ के टाइम, यार पूरा ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे था जिस दिन हम कॉल कर रहे थे। यस सर, उसमें दे रखा था एक्चुअली, हाँ इंडिया ना, सेक्टर विल लाइकली हर्ट बाय दिस रेसिप्रोकल हाँ टैरिफ। वो दिया था नहीं, अभिषेक उस दिन, उसका क्या काफी प्रॉब्लम है पाँच ना, पाँच तक के उसका नीचे थे सब स्टॉक्स। हाँ वो प्रॉब्लम क्या हुआ था, क्योंकि ट्रम्प ने इंडिकेट किया था कि ही विल आल्सो ब्रिंग नॉन टैरिफ एरियाज इनटू टैरिफ। हाँ मतलब जहाँ पे यूएस इंडिया यूएस को कम टैरिफ भी करता है, उसको भी वो टैरिफ लगाएगा, ऐसा उसने बोला था, ठीक है। तो वो सिर्फ सब सेक्टर तोड़ने लग गए, फिर वैसा हो गया उस दिन। ओके। पर हम्म। नहीं उस दिन ना हम बात कर रहे थे, आई थिंक किसी ने बोला कि ये जो टेक्सटाइल का है तो मैक्सिको पे वो टैरिफ लगाने वाला ना, बिकॉज ऑफ वो इलीगल उसके जो माइग्रेंट हाँ जाते हाँ, हैं। तो यस। उसके वजह मैक्सिको वाज आल्सो द प्लेयर हु सब हु एक्सपोर्ट्स टू यूएस टेक्सटाइल, ऐसा था। हाँ तो अगर हाँ, उसको बट वो टैरिफ लग रहा सर है तो उसको, टेक्सटाइल स्पेसिफिक नहीं था ना, मतलब इट वाज लाइक अच्छा हाँ वो इसीलिए कर रहा था बिकॉज उधर से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हाँ हैं। इंडिया पे नहीं लग गया सर, इंडिया में टेक्सटाइल पे टैरिफ लगना इज डिफिकल्ट। प्लस अच्छा सर वो भी था ना सर, जो यूएस ट्रम्प सेड दैट इट विल इम्पोज लाइक 150% टैरिफ फॉर ब्रिक नेशंस एज वेल। हाँ, हाँ उसमें इंडिया, वो भी हाँ इंडिया है ना, ब्रिक्स में इंडिया यस। इंडिया है। है नहीं बट बट सो बट इफ यू सी द ट्रेंड ना हेमंत, मतलब अभी अभी इंडिया में ऑलरेडी टॉक्स चल रही, यूएस के डेलीगेट्स आर ऑलरेडी इन इंडिया। और यस। इंडिया इज ऑलरेडी 23 बिलियन यूएस डॉलर्स का, तो वो लोग ने एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ मतलब कम करने को बोल दिए, मतलब बोला है उन्होंने, हम लोग उतना हाँ वर्क तो कर ही देंगे करके, ठीक है। तो ये मेरे को लगता नहीं इतना इम्पैक्ट आएगा, मतलब आई डोंट थिंक सो। पर ठीक है, वी टेक्सटाइल पे तो सी नहीं आना चाहिए। क्या है, प्रोबेबली वी विल नॉट टॉक अबाउट मैक्रो, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रहा है, करेक्ट। बिकॉज इसमें कुछ एनालिसिस ही नहीं है ना, वी कैन नॉट डू, वी जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो थिंग्स दैट विच आर इन आवर हैंड ना, कि क्यों होगा ग्रोथ यूएस में ना, कि क्या हो रहा है यूएस में, ग्रोथिंग क्यों बढ़ रहा है, या अगर टैरिफ लग भी गया तो दैट्स अ फाइन, डिफरेंट थिंग कि कितना इम्पैक्ट होगा, बट मेजरली सेल्स बढ़ रहा है क्या, वो नहीं हमको बढ़ रहा है, देखना वही मैं बोल रहा हूँ। अब है। ऊपर वाले मैंने क्यों आपको डेटा दिखाया ना, क्योंकि आप हाँ इसके ऊपर वाले स्लाइड में जाओगे ना, वो जहाँ पे हाँ यूएस रिटेल सेल्स था, हाँ इम्पोर्ट्स तो गिर ही रहा है। आप ऊपर चले जाओ, और इसके ऊपर वाले स्लाइड में यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूएस रिटेल ग्रोथ देखो ना, रिटेल ग्रोथ हाँ, उतना इंक्रीमेंटल आ नहीं रहा आ है नहीं रहा जितना है, आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है। एंड ये साल तो कितना ग्रो किया, 3% ग्रो किया है,
तो वो मतलब 3% इज गुड फॉर यूएस, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आई मीन ये एक रिस्क है एपरल सेक्टर को, जो भी एक्सपोर्ट्स में आप केपीआर ले लो या ये बड़ा ले लो, मार्केट है ना यार, है 224 बिलियन डॉलर का मार्केट है, मतलब सर। काफी बड़ा मार्केट है। एक आपको चीज बोलता हूँ, बट सर एक छोटा रिक्वेस्ट है, हाँ। ये डेटा पॉइंट के लिए आप रिकॉर्डिंग एक सेकंड बंद कर सकते हो क्या? अच्छा।